Good evening and welcome all of you. I'm Anand, and today is Thursday. We are meeting slightly early at 4:30 as usual. And we have with us today CS Gaurav Kulkarni, who has been associated to the Asra Foundation for quite a while now. And he has been, providing his expertise related to company formation, legal compliances, and various other aspects for the Asra Foundation. Gaurav, आपका स्वागत है. Thank you. और Thank you very much. we are excited to interact with you, with your journey because मैं सबको बताना ये चाहता हूँ कि गौरव जी सिर्फ एक सीएस नहीं है. मैं उनको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन यानी एंटरप्रेन्योर भी बोलूंगा क्योंकि उन्होंने खुद की जर्नी में भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्टैब्लिश किया है. तो गौरव, हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपके बारे में, यानी आपकी जर्नी कैसी रही. इनिशियली यू वर वर्किंग विद सम कंपनी एंड then later on you got into this business of company secretary with a couple of partners. So a little bit about you. Thank you very much. Thank you, Dayasra, for providing me this opportunity. So to begin with, I was working with Serum Institute during my training days. So I completed my company secretaryship in the year 2007. So initially for 15 months, we have to do mandatory training, which I completed with Serum Institute of India Limited. After that, I went to Compelling Systems Limited, which was a software company based in Hinjawadi, Pune. So all my companies are located in Pune, first of all. So after Hinjawadi, then I was working with Eastwell Asia Private Limited, which is a multiplex located on the University Road for 4.5 years rather. And that was the time when I really realized that I could do something on my own. And then for 1 year, I was working with Kirloskar Oil Engines afterwards, and then I started my practice with Shruti Kautekar. So basically our firm name is SKGK and Associates LLP, which is a firm of company secretaries. And after 7.5 years of career in employment, I have switched on to practice, and now we have successfully we have entered into 6th year of our practice now. So a total journey of almost 14 years now from completing company secretaryship course. And believe me, the reason behind it is you get more knowledge, you get more freedom to work. At the same time, you get more areas to explore with. And one more point was when I was working with different organizations, I wanted to put in that knowledge with the entrepreneurs who wanted to set up their business, so that I could help my experience in different sectors. Because if you see my companies, all the companies were totally into different sectors. Even Shruti, my partner, was also working with for some of the companies, renowned companies rather. So we wanted to put our experience with the persons who wanted to establish their companies or say LLPs or their businesses, so that we could give them hands-on experience how the things work within the company and how you can establish yourself in the market. So that was the reason why we always thought of coming with our own setup, so that we could assist them in their business endeavors. Great. And गौरव, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी अलग-अलग डोमेन्स या बिजनेस के साथ में काम करने से मुझे मालूम है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है. और एक्सपीरियंस इन एन एंटरप्रेन्योर्स जर्नी इज वन ऑफ द की फैक्टर्स. क्योंकि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि देयर आर सम थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम द बुक, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू लर्न ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड. और जो अच्छी बुरी चीजें, सब टाइप की चीजें हम सीखते हैं while we become an entrepreneur. Those are our real knowledge and real skill even while we are moving forward. So it's interesting how you have switched into different roles and now you have your own company. आज के टॉपिक से थोड़ा सा जुड़कर सवाल है कि आपका कंपनी कौन सा है, या यानी क्या वो एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, और आपने वो क्यों चूज किया? हमारा बेसिकली एलएलपी है. सो इट्स limited liability partnership, and the reason behind why we choose LLP is we are into consulting business. So consulting business, so it's better to be LLP. क्यों है? Basically क्या होता है कि you can form a partnership or an LLP, लेकिन you get a corporate structure, because in case of LLP the partners are distinct from the business. So उसको हम लोग distinct legal entity बोलते हैं. So LLP is different and the partners are different. And the basic advantage अगर आप देखते हो LLP का, तो क्या होता है कि liability जो मतलब अगर आप knowingly if you do any fraud, then only liability is attached to the partners. Otherwise the liability of partners and the liability of the firm remains different, which is unlike in case of a partnership. क्योंकि partnership में ये differentiation नहीं है. So this is the basic difference between the partnership and an LLP. So that is the reason why
rather not only us, but any consultant or any business man can choose LLP or partnership. राइट, इंटरेस्टिंग। तो हम सडनली जंप ही कर दिए टॉपिक में, लेकिन आगे जाते हुए इट्स ग्रेट दैट देयर आर क्वेश्चंस दैट हैव स्टार्टेड कमिंग इन इमीडिएटली। प्रशांत जी करके हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आगे जाने से पहले, वो क्वेश्चन लेने से पहले एक क्वेश्चन है कि बिजनेस एंटिटी, ऐसा हम बोलते हैं कि बिजनेस एंटिटी एक बात है, Yes. और बिजनेस या बिजनेस ओनर, तो क्या ये अलग अलग एंटिटीज है? कैसा ट्रीट करना चाहिए बिजनेस को? See, business entity मतलब क्या? Business entity मतलब कोई organization which is formed by an individual or two or more individuals coming together. Now, why the individuals are coming together? So individuals are coming together to either sell their products, they want to provide any services, or they want to manufacture a product. So ultimately क्या होता है कि it's an entity through which you are running your business. You want to generate revenues out of it. So business entity matlab you are coming together, either you are on your own, you are coming together with someone and doing business, that is you are providing service, you are providing manufacturing activities, or you are doing say trading activities. इसलिए हम लोग उसको business entity बोलते हैं। और business entity is it different from the owner? तो ये हमको ये probably we'll have to discuss about different types of business entities, and then we can conclude whether the entity is different from the owner or whether it is attached to the owner. So for that we need to discuss more about the types of business entities which one can form. अच्छा अच्छा, और ये टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज जो है, उससे जुड़ा प्रशांत जी का क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर फॉर एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस ओनर्स फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा आप टाइप्स ऑफ एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज बताएंगे, और ये Yes. क्वेश्चन फिर हम आंसर करेंगे। See, वैसे देखा जाए तो there are many types of business entities. First of all, we can start with sole proprietor. When an individual is running a business on his own, that is a sole proprietor. Then there is a partnership. In case of partnership, what happens is कि जैसे हमने पहले बोला कि in case of partnership, two or more persons come together for conducting a business. तो business कोई भी हो सकता है, trading हो सकता है, manufacturing हो सकता है, then providing service हो सकता है. Then comes the LLP. LLP के अंदर भी दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं, and then they can form a LLP. So LLP is limited liability partnership. जैसे मैंने पहले बोला कि there is a differentiation between a partnership and a limited liability partnership. जो नाम में है वही है कि limited liability partnership. So partnership is partnership, but it's a limited liability partnership with a separate legal entity. क्योंकि partnership के अंदर there is no separate legal entity. Partners are liable wholly and solely if at all any wrong is done or any case is filed against them, which is unlike in case of an LLP. तो LLP और पार्टनरशिप में यही डिफरेंस है। एंड देन यू हैव अ कंपनी। अभी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि कंपनीज के अंदर यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। के प्राइवेट लिमिटेड में कैसा है, यू नीड टू हैव 2 डायरेक्टर्स देन 2 शेयर होल्डर्स। इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी यू हैव 3 डायरेक्टर्स देन 7 शेयर होल्डर्स। वैसे सेक्शन 8 कंपनीज देयर व्हिच इज फॉर्म फॉर कैरिंग आउट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन चैरिटेबल नेचर। Then you have a producer company where in case of say farmers come together, and in case of harvesting or say producing any farm produce, they come together and form a producer company. So there are different type of companies, and section 8 companies, as I said, कि वहाँ पे वो charitable objects करने के लिए companies are formed. So there is a section 8 company. And then we have an OPC, one person company where only one director and one shareholder can be there, and OPC is formed. So there are different type of entities which can be formed under company as well. And apart from company also we can have a partnership, फिर हम लोग sole proprietorship भी कर सकते हैं, and LLP is also there. So lot many options are there when you can where you can conduct your business. राइट राइट। तो एक यहाँ जो क्वेश्चन है कि उनको मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स, अलग अलग बिजनेस ओनर्स हैं, उनको अभी उनके प्रोडक्ट्स मार्केट करने हैं, तो कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छा रहेगा? See, honestly speaking, इसमें there won't be an answer like say 1 + 1 = 2, but I can provide a guidelines. There are, if you ask me, there are probably say 8 or 9 points which I would like to highlight, based on which you can take a business decision whether you should be forming a company, or say you can have a sole proprietorship, or you can form a company. So first and the foremost point which is to be considered is whether you are manufacturing a product, whether you are providing a service, or whether you are into a trading business.
So first of all, you need to ascertain in which business line you are. That is utmost important. Then you need to ascertain is your market reach. What kind of market you want to reach. So whether you want to sell your product or your service, whether you want to produce, whether you want to do trading or say provide your services within say geographical limits of your city, और आपको आपके सिटी के बाहर भी जाना है, से प्रोबेबली आपको स्टेट के अंदर आपका माल बेचना है, आपको इंडिया में बेचना है, whether you want to export your product. So market reach is also absolutely important point. Then the third most important point is whether you want to produce on your own or whether you want to produce, whether you want to provide service on your own, or the number of persons involved in providing the business. मतलब आपको ज्यादा लोगों के साथ हाथ मिला के बिजनेस करना है कंडक्ट, या आपको अकेले बिजनेस कंडक्ट करना है. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज आप आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कितने लोगों के साथ आपको बिजनेस करना है. एंड दैट इज वन रीजन, दैट इज वन पैरामीटर which is important for choosing the right type of business entity. Then the fourth one is the financial needs. That is financial needs आपके बिजनेस के क्या है. आप कम पैसे में बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, आपको इन्वेस्टर्स लगने वाले हैं, से आपको maybe you want to raise loan. So all these factors are important. Then the fifth part is the tax incidence, क्योंकि अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स को अलग अलग टैक्सेशन इज एप्लीकेबल. So that is one of the point which needs to be taken into account. Then the sixth point is the skill set. This skill set is very very important कि आपको कौन से स्किल सेट में आपको बिजनेस करना है. मतलब फॉर एग्जांपल आपको जहाँ पे एम्प्लॉइज अवेलेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, देन प्रोबेबली आपको लोकेशनल एडवांटेज कहाँ पे है. दैट इज आल्सो वन थिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू कैन डिसाइड योर बिजनेस. देन प्रोबेबली आई वुड से कि सेवेंथ और द सिक्स्थ पॉइंट वुड बी द कंप्लायंसेस, क्योंकि हर एक बिजनेस एंटिटी में आपको अलग अलग कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. सो वो कंप्लायंसेस आपको समझ के लेने चाहिए जब आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सोल प्रोप्राइटर में कंप्लायंस नहीं है या कम है, या प्रोबेबली आपको एलएलपी में या आपको कंपनी के केस में आपको कंप्लायंसेस कम है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, because understanding the compliances which are to be done is utmost important for any entrepreneur. और वो समझ के ही लेना पड़ेगा, because just I'm advising or say any person is advising you to form a company or any person is advising you to form an LLP, you should not just form that, but you should understand what you have to do the compliances. Because अगर आप compliances करते हो तो आपको आगे जाके आपका बिजनेस ग्रोथ में भी आपको उसके डेफिनेटली इट हेल्प्स यू. नहीं करते हो तो डेफिनेटली पेनल्टीज आते हैं, प्रोसिक्यूशंस होता है. सो ऑल द डिफिकल्टीज एंड फिर आपको लगता है कि अरे व्हाई आई फॉर्मड एन एलएलपी और व्हाई आई फॉर्मड एन कंपनी. सो ऑल दीस थिंग्स डेफिनेटली हैपन. then one more point which is important while considering which kind of entity you should be forming is क्या आपको टेंडर फाइल करना है, क्या आपको गवर्नमेंट सब्सिडी लेनी है, या आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर बेनिफिट्स लेने हैं. क्योंकि सपोज यू वांट टू फाइल अ टेंडर, तो टेंडर के गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है. there are certain tenders under which government is saying you need to be a registered partnership, or you may be a company, or you may be a LLP. So you need to refer those things very carefully, क्योंकि अगर I want to form say manufacturing concern and then मुझे पता है कि मुझे गवर्नमेंट टेंडर्स फाइल करने हैं. सपोज से अभी का रिसेंट एग्जांपल ले लो कि जैसे कोविड में आई वांट टू से सप्लाई मास्क और आई वांट टू सप्लाई से ऑक्सीजन, और अगर उसके लिए कभी आगे जाके गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, so they may say कि टेंडर के केस में you need to be a company, but if I'm not a company then I may not be eligible to file a tender. Similar is the case in case of a subsidy कि I want to avail subsidy for my company, I am into say खादी ग्राम उद्योग में I'm doing some work, but then वहाँ के restrictions के मुताबिक अगर मेरा business entity is not there in place, so I may not be eligible to obtain that kind of subsidy. Similar is the case with say Startup India registration. I want to avail Startup India registration and I want to gain benefits under that, but then I'm not a registered partnership, or I'm not a company, or say I'm not an LLP. So I may not avail those benefits because I'm a sole proprietor, for example. So that is most important कि आपको आपका business कहाँ तक scale up करना है. क्योंकि अगर वो आप नहीं समझते हो तो फिर probably you won't get those many benefits जो हमने अभी बात की. So those benefits को आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको वो नहीं मिल सकता है. So I guess these are the points on the basis of which you can definitely think of forming say either company, LLP or sole proprietorship. ये broad guidelines है जो हर एक को आप समझ के लेना चाहिए while forming any kind of business entity or setting up their businesses. बिल्कुल. अभी प्रोप्राइटरी फर्म इन यहाँ जो एक पार्टिसिपेंट है उनकी है, वो बोल रहे कि आई हैव माय बैलेंस शीट फॉर लास्ट ईयर
नाउ आई वांट फाइनेंस टू एक्सपैंड माय बिजनेस। तो ये फाइनेंस का क्वेश्चन है, लेकिन गौरव जी, यू कुड विथ योर एक्सपर्टीज यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सी क्या होता है, फाइनेंस लेने के टाइम पे हम जब बैंक में जाते हैं, सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट कि अभी अभी वी नीड टू इवन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि वेदर दे आर व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और व्हाट काइंड ऑफ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर इट टू से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो बैंक्स आस्क यू सर्टेन मार्जिन मनी। सो क्या होता है कि कंपनी होती है तो फिर कंपनी के पास यू हैव अ मार्जिन अमाउंट, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में व्हेन यू हैव बैलेंस शीट, व्हेन यू वांट टू रेज फाइनेंस, तो देयर मे बी अ केस वेयर limitations of raising finance may arise. At the same time, you can definitely raise finance. So raising finance is not an issue in case of a proprietorship, but you need to sit with your banker. You need to show them all the documentation. और सबसे important बात जो businesses में है, जो probably we also tell all our clients is कि don't, मतलब अभी इन्होंने 9 months उन्होंने बोला कि they have he has started his proprietary firm. So it would be my advice कि अगर आपको profit हो रहा है आपके firm में, then show profits in your business. बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि एडवाइस मिलता है कि लॉस दिखाओ, सो इट इज वेरी इजी टू शो लॉसेस इन योर बिजनेस, सो इट्स बेटर दैट व्हाटएवर इज द ट्रूथ प्लीज हाईलाइट इट इन योर बैलेंस शीट्स, सो दैट व्हाट हैपेंस इज कि व्हाइल रेजिंग फाइनेंसेस इट योर गुड बैलेंस शीट गोस टू द बैंकर्स। सो हाउ यू वांट टू, क्योंकि फाइनेंस रेजिंग फाइनेंस के केस में हाउ यू वांट टू रेज फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप आपके फ्रेंड से भी रेज कर सकते हो, रिलेटिव से भी रेज कर सकते हो, प्रोबेबली यू कैन रेज फ्रॉम बैंक्स से, बैंक्स के यहाँ पे भी आप मे बी यू कैन रेज फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, पतपेढ़ी संस्थास आर आल्सो देयर, सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रेजिंग अ फाइनेंस एज वेल, बट देन also for raising finances there are limitations in say law के अंदर भी there are certain limitations, at the same time कोई अगर आप कंपनी हो तो कंपनी के अंदर भी there are certain limitations, so आपको वो सारा समझ के लेना पड़ेगा, and then you should raise your finances. देन जैसे मैंने बोला कि मार्जिन मनी एंड एवरीथिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है बैंक के वो भी समझना पड़ेगा, बिकॉज बैंक में आस्क फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर योर फाइनेंस एज वेल फॉर गिविंग योर लोन्स, सो ऑल दिस फैक्टर्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। श्योर। और जब हम एक आध कंपनी शुरू करते हैं, राइट, यू फॉर्म एन एंटिटी, तो आई चूज, फॉर एग्जांपल आई चूज प्रोप्राइटरशिप, और यू नो देयर आर 2 or 3 people हु चूज एलएलपी, तो उनके ग्रोथ में उसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, या ऐसे कुछ फैक्टर्स है क्या जो नेगेटिव की तरफ लेके जा सकते हैं, मीनिंग लॉस की तरफ? क्योंकि अगेन, जब पिछली बार हम बोल रहे थे तो आप बोल रहे थे कि कंपनीज फॉर्म होती है, लेकिन उसमें से 10 में से कुछ ऐसी कंपनीज होती है, 3 4 5, जो बाद में बंद हो जाती है। पीपल स्टार्ट ऑफ विथ अ गुड थिंग, गुड इंटेंट, एंड देन दे हैव टू शट द कंपनीज ऑफ फॉर डिफरेंट रीजंस, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपके एक्सपीरियंस से आप कैसा गाइड करेंगे एंटरप्रेन्योर्स? सी देयर आर 3 to 4 फैक्टर्स ओवर हियर एज वेल। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी कंपनी के केस में डेफिनेटली यू नो योर ऑब्जेक्ट क्लॉज, एलएलपी के केस में भी आपको आपका ऑब्जेक्ट मालूम है कि आपको किसके लिए बिजनेस करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यू डोंट हैव एनी बिजनेस गोल एज सच डिफाइंड, कि आपको पहले साल में आपको क्या गोल अचीव करना है, सेकंड साल में आपको गोल क्या अचीव करना है, प्रोबब्ली से व्हाट वी कैन सी इन फाइनेंस लैंग्वेज इज बजटिंग, क्योंकि आप नया बिजनेस शुरू करते हो तो इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आप बजटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आपके बिजनेस का, क्योंकि आप अगर वो करते हो तो आपको समझ में आता है कि व्हाट आई हैव टू अचीव, व्हाट गोल आई हैव टू अचीव इन द फर्स्ट ईयर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि फॉर एनी बिजनेस टू से रन ऑन इट्स ओन, मतलब अच्छे से सेट होने के लिए, जैसे यू मस्ट हैव सीन फ्रॉम और यू मस्ट हैव हर्ड कि एटलीस्ट 1000 days यू हैव टू बी इन द मार्केट, यू हैव टू बी देयर, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, परसिवरेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेसेस। अभी कोविड के केस में वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट 1.5 years बिजनेसेस आर स्लगिश, और कुछ बिजनेसेस तो बिल्कुल चले ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्स बिजनेस, होटल इंडस्ट्री हैव सफर्ड अ लॉट, tourism industry has suffered a lot, so probably you need to keep your patience in that. So ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब मैंने बिजनेस एक चालू किया तो मुझे ऑटोमेटिकली लॉटरी लग गई एंड इट इज गोइंग टू रन ऑन इट्स ओन, so you have to definitely take effort, you need to first of all आपका ऑब्जेक्ट was fair enough, but then आपका गोल्स क्या है, you have to break down those goals into say minor goals, कि पहले आपका मंथली गोल हो सकता है तो that's the best thing, but monthly नहीं है तो क्या, can you have a 6 monthly goals, can you have an yearly goal for your businesses, then probably when you set your goals right, then monitoring those goals as well, then probably recruiting right kind of skill sets with your company or your जो भी हो, मतलब आप प्रोप्राइटर हो, एलएलपी हो,
से कंपनी हो, बिकॉज आपको मार्केटिंग भी करना है, आपको इसलिए आपको आपका डोमेन समझना पड़ेगा। आप जैसे आपका डोमेन समझते हो तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कितने कितने एम्प्लॉयज रिक्रूट करने पड़ेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट आई नीड फॉर माय बिजनेस, आर यू इनटू कंसल्टेंसी बिजनेस, आर यू इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर आप खुद होकर maybe if you try to do everything on your own, it is not going to suffice. You may achieve business growth, but then the growth which you want, you may not achieve it. So उसके लिए आपको ascertain करना पड़ेगा कि what kind of right skill set is there. Then the third and the most important factor is utilizing your finances. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग finance लेते हैं, probably say I put my own capital in my company or say LLP. Then probably हम लोग बाहर से लोन भी लेते हैं, लेकिन उसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, that is also very important. If I'm bringing in capital, if I'm bringing in loan, then I should be buying my assets. I should be buying say machinery. I should be buying say equipment in case of a service industry, and through those machinery, through that equipment, I'll be generating revenues for my organization. वो revenues से I'll be carrying out my expenditure which I want to do for my business expansion. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, probably say in this scenario I'll say कि I'm raising say finance and I'm paying salaries to my employees, for example. That's bad financial management, because if you're say putting in capital, that should be that the ideal most scenario is you should be putting in capital to buying for the purpose of buying assets of the company through which you will generate revenue. क्योंकि बहुत बार कहते हैं अगर 3-4 फैक्टर्स आप देखते हो तो स्किल सेट, देन से यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, देन नॉट डूइंग बजटिंग और नॉट कीपिंग अ फोकस्ड गोल इन योर बिजनेस, सो ऑल दिस फैक्टर्स देन कल्मिनेट इनटू से आपको लगता है कि यार मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि पेशेंस, कि आपको 3 साल 1000 डेज यू हैव टू बी इन द मार्केट, यू हैव टू रन योर बिजनेस, यू हैव टू बी देयर इन योर बिजनेस। क्योंकि ये अगर आप नहीं करोगे तो प्रोबेबली यू मे एंड अप सेइंग यार मेरा बिजनेस ही नहीं हो रहा है। से मार्केटिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस से, आपका ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग, तो आपकी जो रीच है लोगों तक आपको पहुंचना पड़ेगा। पीपल आर नॉट गॉन अदर डेज व्हेन people are going to come to your office and say they want to buy or say they want to take your services, so you have to reach to the customers, because customer तक अगर आप पहुंचोगे नहीं, if you don't sell your products, if you don't market your products, then how will they come to know about your product? तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी। ये यू कैनॉट वेट फॉर द कस्टमर्स की अगर एक कस्टमर ने बाय किया, देन ही विल एडवर्टाइज माय प्रोडक्ट, देन माय सेकंड प्रोडक्ट विल गेट सोल्ड। सो ऐसा नहीं होने वाला। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, या प्रोबेबली से सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, हाउ वी कैन बाय। maybe you can develop certain schemes, coupons, in number of things are there, marketing strategies are there, you can have different marketing, you can have your own portal through which you can sell your products. So क्या होता है, बहुत बार restricted investments are also there. I can understand that, okay, I'm starting my business, I'm putting in my fund, but I have restrictions on spending as well. तो gradually आपको सोचना पड़ेगा कि how you can increase your spendings on your marketing, how you can increase your spendings on say recruitment of employees or say right skill set जो आपको लगने वाला है, then only you will be able to expand. Otherwise क्या होता है कि आपकी growth होगी, probably say you may earn say 6 lakhs or 10 lakhs of money in the first year, but then how much you are growing in the second year or third year, तो वहाँ पे stagnancy आपको देखने को मिलेगी. So if you don't want stagnancy and then if you don't want to say कि अरे मेरा business तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको ये सारे के सारे चीजें करनी पड़ेगी जिस तरीके से आपको business बढ़ सकता है. No, that was very helpful, गौरव. आई थिंक ये जो बातें आपने बताई, ये आज के सिचुएशन में अलग तरीके से रेलेवेंट है, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन maximum number of conflicts are arising and maximum number of unrest is also there in the situation, because as much markets जो है वो अभी पूरे फेवरेबल है ऐसा नहीं. कुछ टाइप के बिजनेसेस के लिए बहुत फेवरेबल है, और कुछ टाइप के बिजनेसेस, यानी बेआसरा जिनके साथ में काम करता है, फूड है, फैशन है, ब्यूटी है, तो उनको बार बार यहाँ पे दिक्कतें आई है पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में. तो यू नो वी आर ऑल टुगेदर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग दीज बिजनेसेस इन ऑर्डर टू थ्राइव एंड सर्वाइव. तो अभी थोड़ा सर्वाइवल का भी सिचुएशन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये टेनेसिटी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने दिखाई है, और उन्होंने इसको एक पॉजिटिव तरीके से सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट की तरीके से देखा है. दे हैव स्टेड ऑन, दे हैव स्टक अलोंग इवन within these time periods that have been really difficult. तो आपको भी इसके बारे में बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि लोगों ने किस तरह से लोन्स या शॉर्ट टर्म कुछ सपोर्ट लेके अपने बिजनेसेस किए हैं,
कहीं एम्प्लॉयज को 50% सैलरी दे के, नहीं तो उनके साथ में नेगोशिएट करके, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं. एंड मेनी एंटरप्रेन्योर्स have really come together to work on this वो था situation, राइट. तो हमें ये दिखाई दिया है इस टाइम में. एक डेफिनेटली. क्वेश्चन है कि कोई तो अगर एक एंटिटी शुरू करता है और बाद में सोचता है कि अभी ये बिजनेस एंटिटी हम चेंज कर दें, तो क्या ये पॉसिबल होता है कि प्रोप्राइटरी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में या तो प्राइवेट लिमिटेड में? सी कन्वर्ट डेफिनेटली हो सकती है, ऐसा नहीं कि कन्वर्ट नहीं कर सकते या बिजनेस एंटिटी चेंज नहीं कर सकते. लेकिन क्या है, उसमें भी काफी फैक्टर्स है. फर्स्ट क्या होता है कि अगर आपको चेंज करना है बिजनेस एंटिटी, तो आपको अभी अभी सपोज आप प्रोप्राइटर हो या तो फिर एलएलपी हो एंड यू वांट टू चेंज, कैन यू चेंज? यस, यू कैन चेंज. बट देन आपके बिजनेस लाइसेंसेस होते हैं जो आपने लिए रहते हैं. फॉर एग्जांपल यू यू ऑब्टेन पैन कार्ड, यू ऑब्टेन शॉप एक्ट लाइसेंसेस. जो भी लाइसेंस मैं बोल रहा हूँ दैट इज अ जेनरिक इन नेचर, सो इट मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू बिजनेस, बट देन बाय एंड लार्ज आर एप्लीकेबल. जैसे शॉप एक्ट हो गया, सो देन पैन कार्ड हो गया, देन उसके बाद टैन कार्ड हो गया, सो टैन टैन नंबर इज आल्सो देयर. फिर देन यू नीड यू ऑब्टेन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो जिसको हम लोग उद्योग आधार बोलते थे, जिसको अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है. उसके बाद प्रोबेबली यू मे हैव ऑब्टेन से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर योर बिजनेस लोगो या आपका बिजनेस एंटिटी के लिए है. फिर उसके बाद क्या होता है, इफ यू आर इनटू फूड इंडस्ट्री यू मस्ट हैव ऑब्टेन से एफएसएसआई लाइसेंस एज वेल. तो ढेर सारे लाइसेंसेस हम लोग ऑब्टेन करते हैं. सो भाई कन्वर्टिंग देम इनटू से, क्योंकि आप जब एंटिटी चेंज करते हो तो ऑल दीज लाइसेंसेस आर आल्सो चेंज. सो अल्टीमेटली क्या होता है कि लॉन्ग रन में अगर आप मुझे पूछते हो तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू चेंज योर बिजनेस एंटिटी, क्योंकि शुरुआत आप जब करते हो तो प्रोबब्ली यू कैन चेंज एंड स्विच ओवर. बट देन ऑल दीज लाइसेंसेस जो आप ऑब्टेन करते हो फॉर रनिंग अ बिजनेस, तो वो आपको चेंज करने पड़ते हैं. अगेन आपको वो एलएलपी के और नाम से ऑब्टेन करना पड़ता है, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो प्रोबेबली इसे कंपनी फॉर्म करते तो कंपनी के नाम से लेना पड़ता है. अगर एलएलपी है यू कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, सो कंपनी के नाम से आपको लेना पड़ता है. So all these things you definitely have to consider when you are converting into say alternative form of say business entity. और सबसे important बात कि ये सब करने के लिए आपको certain cost is going to get involved. So जो कॉस्ट है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि आप प्रोप्राइटरी से सिर्फ एलएलपी में कन्वर्ट करो तो देयर वोंट बी एनी कॉस्ट, क्योंकि ये सारा कन्वर्जन में आपको कॉस्ट भी लगने वाला है. सो दैट आल्सो यू नीड टू कीप इट इनटू योर माइंड. उसके लिए कुछ ना कुछ आपको टाइम ड्यूरेशन भी जाता है. ऐसा नहीं कि आज आई एम अप्लाइंग एंड इमीडिएटली आई एम गेटिंग से न्यू पैन कार्ड और से टुमारो आई एम गेटिंग अ टैन नंबर इमीडिएटली इन द नेम ऑफ माय फर्म. सो वो टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप पूछ रहे हो कि प्रोबेबली से मुझे आज दिखाई दिया कि गवर्नमेंट का टेंडर मुझे फाइल करना है इन से अनदर 7 days टाइम, एंड आई से कि मुझे अभी के अभी आई वांट टू कन्वर्ट माय बिजनेस इनटू से एलएलपी. सो यू नीड टाइम, बिकॉज आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो इमीडिएटली होंगे नहीं होंगे. सो दैट वो हमको देखना पड़ेगा कि क्या वो वायबल है नहीं है. या तो फिर इस केस में और एक चीज जो हम लोग ज्यादातर एडवाइस करते हैं या बताते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ प्रोप्राइटर, सो यू कंटिन्यू रनिंग योर बिजनेस अंडर प्रोप्राइटरशिप and parallelly you form an LLP or parallelly you form a private limited company and gradually you transfer that business to your new entity. सिर्फ इसमें एक एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या आता है कि प्रोबेबली आपका जो आपने अभी जैसे किसी ने बोला कि 9 मंथ से मैं बिजनेस कर रहा हूँ अंडर प्रोप्राइटरशिप, या तो फिर कोई बोल सकता है कि आई एम डूइंग बिजनेस सिंस लास्ट 5 ईयर अंडर लास्ट 5 years अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप. सो वहां पे आपको प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है कि आपको वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं दिखाई देगा वहां पे, क्योंकि टुडे व्हेन यू फॉर्म एन एलएलपी यू विल से आई एम आज मेरी एलएलपी फॉर्म हुई है या आज मेरी कंपनी फॉर्म हुई है. So you won't be able to show that, but then you can definitely tell you are in the market, you are doing business under proprietorship, then you converted into say or you started your LLP or say you started your company. So depending upon the businesses or depending upon business need, we can take a call whether you can convert or whether you should convert or आपको existing में करना है. And of course cost and all licenses जो आपने obtain किए, based on that a decision can be taken whether you can convert. But yes, can you convert? The answer is definitely yes. It's absolutely yes कि you can convert into any form of entity at any point of time. ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते. एंड वेरी वेल पुट कि जैसा कंपनी शुरू करने में टाइम लगता है, एक्सपेंस लगता है, वैसे कंपनी क्लोजर करने में या तो उसका फॉर्म चेंज करने में भी देयर इज टाइम इन्वॉल्व. सो Yes, लेट अस कंसिडर all of these points if somebody takes a decision that they want to move from one entity to the other, or these closures are very important actually क्योंकि हाँ. इसमें I would like to put one point कि आपने जैसे क्लोजर का सही तरीके से बोला कि क्लोजर ऑफ से LLP या क्लोजर ऑफ से कंपनी टेक्स टाइम. It's not like कि आपने आज सोचा और immediately क्लोजर कर दिया, because there are certain rules regulations under the act. क्योंकि हर एक बिजनेस के अंडर जब हम क्लोज करते तो ये लाइसेंसेस भी हमको कैंसिल करने पड़ते हैं.
So that is also important. अभी से proprietorship में you have few licenses, so it may we can say कि ठीक है हम लोगों को वो surrender करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. But then when you form certain entities, like say partnership अपने form की, तो पार्टनरशिप भी आपको कैंसिल करनी है. आपने कंपनी फॉर्म की तो ये लाइसेंसेस कैंसिल करनी है, आपको कंपनी स्ट्राइक ऑफ करनी है, एलएलपी आपको स्ट्राइक ऑफ करनी है. एंड व्हाइल स्ट्राइकिंग ऑफ दोस एंटिटीज यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स टू बी डन. ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा इमीडिएटली आज कर दे, बिकॉज देयर आर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज. एलएलपी एक्ट है, एलएलपी रूल्स है, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज रूल्स है. सो यू नीड टू रेफर देम एंड देन ओनली यू कैन क्लोज डाउन योर एंटिटीज. सो दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है बहुत बार आप फॉर्म करने के लिए आपको से प्रोबेबली से 7 to 10 डेज ही लगेंगे, लेकिन बंद करने के लिए आपको जरूर टाइम लगेगा. सो जितना फॉर्मेशन इज इजी ना, उतना बंद करना इज डेफिनेटली नॉट एन इजी टास्क. उसके लिए आपको बहुत सी सारी चीजें देखनी पड़ती है, वेदर देयर आर एनी लायबिलिटीज, वेदर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, किसी ने केस डाला है आपके ऊपर. सो ऑल दीस थिंग्स वी नीड टू ascertain, we need to produce certain documents, and then only your entity gets closed. एब्सोल्युटली ग्रेट. तो हमारा डिस्कशन शुरू हुआ कि कौन सी कंपनी शुरू करनी चाहिए, लेकिन हमने जाते जाते हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ये भी बता दिया कि फॉर्म चेंज करना है, क्लोजर करना है. तो ये सब बातें भी आपको ध्यान से करनी चाहिए. compliances is the key for all sorts of running running mechanisms of a company. And various domains that Gaurav you talked about, and from the company formation compliances point of view, you did not just focus on that but also about various other domains of marketing है, नहीं तो फाइनेंस है. ये सब चीजें किस तरह से बढ़ानी चाहिए. वेरी इंस्पायरिंग. एंड आपका जो एक्सपीरियंस था उससे हमें बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला. वी हैव आल्सो टेकन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि फेसबुक पर ये वीडियो आपको बाद में भी देखने को मिलेगा. तो you can watch it and also ask questions over there, and we will definitely be happy to answer those. The Asra Foundation is also there for your queries ahead. आपको अगर कुछ है तो प्लेटफॉर्म पर भी deasra.in के प्लेटफॉर्म पर भी आप आ जाइए. CS गौरव कुलकर्णी जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं, तो it is our privilege to be with you, Mr. Gaurav. Thank you so much for joining in. Thanks a lot. Actually, in the end, I would like to वहाँ पे मैं एक्चुअली 7 पिलर्स बोलना चाहूंगा जो एक्चुअली अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखे थे. सो आई वुड जस्ट लाइक टू रीड दैट पर्टिकुलर लाइन जो उन्होंने लिखी थी, कि उन्होंने बोला था कि मतलब ये बिजनेस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि व्हाट आर द 7 पिलर्स. तो 7 पिलर्स आर द किंग, द मिनिस्टर, द कंट्री, द फोर्टिफाइड सिटी, द ट्रेजरी, द आर्मी एंड द अलाई आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. नो एक्चुअली इन शॉर्ट में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहता हूँ ताकि सबको समझ में आए कि उन्होंने उस टाइम पे लिखा था एंड हाउ इट इज रेलेवेंट इन टुडेस बिजनेस एज वेल. किंग मतलब जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, जो डायरेक्टर है बिजनेस का, ही इज द किंग डेफिनेटली. द मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर के केस में ही इज द मैनेजर हु रन्स द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ द बिजनेस ओनर. और इवन इफ द बिजनेस ओनर इज देयर, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द मतलब वो बिजनेस में रह के ही इज मैनेजिंग योर बिजनेसेस. तो ही इज द मैनेजर ऑफ द बिजनेस. कंट्री मतलब कौन? तो कंट्री मतलब द मार्केट, द क्लाइंट्स, द कंज्यूमर्स, द कस्टमर्स with whom you are selling your product. तो फोर्टिफाइड सिटी मतलब द हेडक्वार्टर्स. सो आपका जो हेड ऑफिस है जहाँ पे आप बिजनेस डिसीजंस लेते हो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू हैव टू हैव अ हेडक्वार्टर वेयर यू सिट एंड यू टेक ऑल द बिजनेस डिसीजंस. Then comes the treasury. Treasury means the finance, which is the backbone of any business. Without finance, you definitely cannot run your business. Then the army. Army मतलब employees, क्योंकि employees then the right skill set के बगैर आप business ही नहीं कर पाओगे. And last the ally. Ally मतलब कौन? Friend and हमारे जैसे consultant, जो definitely आप we are always there to guide, we are always there to help out. लेकिन लोगों को what I feel is कि they need to discuss, they need to talk out. मतलब ये जो मैंने फंडामेंटली ये जो फैक्टर्स बोले, ये डेफिनेटली आप खुद को भी असर्टन करने पड़ेंगे. एट द सेम टाइम यू नीड टू डिस्कस विद योर कंसल्टेंट एज वेल, एंड देन यू शुड टेक अ डिसीजन ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू फॉर्म, से कंपनी हो, कॉर्पोरेटशिप हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपका डेफिनेटली चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा. बट देन ग्रोथ करने के लिए आप अगर पहले से ही सोचते हो कि मुझे एक लेवल तक बढ़ना है, आगे जाना है, सो डेफिनेटली आपको ये पहले दिन से सोच के ही आपको वो एंटिटी फॉर्म करनी चाहिए. So this is what I have to say from my side. And definitely, I would like to thank Anand Deshpande sir, Deasra Foundation, and the entire team of Deasra, with whom rather the entire team, मतलब SKGK की पूरी team is associated for more than 4.5 years with Deasra. So we definitely like to thank Deasra for all the support and everything what they have given to us till date.
Superb. Thanks a lot. And this Chanakya Niti Sutra is going to help everybody. Yes. And very well put. Entrepreneur is finally the king. So if he takes care of the remaining 6 pieces, I'm sure the business will be successful. Successful, definitely. Thank you. Thank you so much, Gaurav. And let's stay in touch to Thank support you. the Thank you. entrepreneurs. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you everyone on the Zoom platform as well for joining us, and see you next Thursday on Thank you. another topic. Thanks a lot, Gaurav. Thank you.